Prime Minister Narendra Modi has now posted on social media platform X that the CARICOM summit reflects shared commitment of strengthening ties with the Caribbean nations and fosters the cooperation across diverse sectors. He has also said that we are working together to build a bright future for the upcoming generations. Meanwhile, let us also listen into what he said on the summit. भविष्य में हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहूंगा। ये प्रस्ताव 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित है और ये 7 स्तंभ है CARICOM यानी कैरिकॉम। भारत द्वारा दी जा रही आईटेक स्कॉलरशिप में अगले 5 वर्ष के लिए 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं। युवाओं की टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने बेलीज में टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। सभी कैरिकॉम देशों द्वारा इसके इस्तेमाल के लिए हम इसके स्केल और साइज का विस्तार करेंगे। हम कैरिकॉम क्षेत्र के लिए फॉरेंसिक सेंटर बनाने पर भी काम करेंगे। भारत में सिविल सर्वेंट्स की निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने iGOT कर्मयोगी पोर्टल बनाया है। On behalf of all of you, I wish to welcome Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, to CARICOM and Guyana. We can give him a round of applause. Before I move any forward, I want to say, Prime Minister, on behalf of our community and the people of our region, having collectively this occasion to meet you face to face for the first time since COVID, to thank you and the people of India for your selfless attributes when you delivered to this region our first set of vaccines during the COVID pandemic. So on behalf of the Cooperative Republic of Guyana, I extend a heartfelt welcome to you, Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, and my own colleagues of the region, for your collective visit to our beautiful country and to the second CARICOM India Summit. This occasion epitomizes the deep historical, cultural, and diplomatic bonds that unite India and the wider Caribbean. The ties between India and the Caribbean are deeply rooted in shared history and enduring cultural connections. Guyana, like some other Caribbean nations, owes much of its rich cultural tapestry to the arrival of indentured immigrants from India. All right, my colleague Manohar Kesri joins me live back on the broadcast. Manohar Kesri, in fact, what we are hearing is enhanced cooperation. We have heard the statement by Prime Minister Narendra Modi and President, in fact, of the nation, Irfan Ali as well. Both have very amicably shared a relationship in the past as well. And now they have also been laying emphasis on how Guyana and India's relationship in the past has also been very pivotal. But when we talk about times ahead, the MOU has been signed, there have been technical centers. What are the key points and the key plans that both the nation, India and Guyana, have in fact jointly agreed upon for mutual cooperation and also for going forward with the idea of the development? देखिए बिल्कुल जो बायोलेटरल मीटिंग हुई और गयाना और भारत के बीच में जिस तरह से बायोलेटरल मीटिंग के बाद एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और उन्होंने कहा
कि हम किस तरह से गयाना को मदद कर सकते हैं, किस तरह से गयाना के विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बात की स्किल डेवलपमेंट कि गयाना के लोगों को हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसे कौशल विकास में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक अपना सतत मंत्रालय है जो इस पे फोकस कर रहा है। याद होगा कि जो कई कंट्री में यहाँ से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से कई देशों में स्किल लोगों को भेजा गया। तो आप समझ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों बात रखी है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, कि कैसे हम अपने पावर से लीड करते हुए गयाना के आर्थिक विकास में हम मदद कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ के रिजर्व सेक्टर में वहाँ के लोगों को कैसे ट्रेनिंग दे, क्योंकि आज भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कई देशों को भारत जो है मैनमेड वेपन भी और रिजर्व सेक्टर के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसको सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत गयाना के लोगों को रिजर्व सेक्टर में कैसे हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर पावर को लेकर के इसकी योजनाओं को लेकर के इंडिया में अमली जमा पहनाया है, उसको आगे तक ले गया है। यहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने सोलर पावर की स्कीम जो है सूर्यघर योजना की बात है। तो सोलर पावर में या रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे गयाना की मदद की जाए, तो ये प्रस्ताव को लेकर के भी बातचीत है। और सबसे बड़ी बात जन औषधि केंद्र, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इन सब को लेकर के भी गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से बातचीत हुई है और इस सेक्टर में भी मदद करने और भारत और गयाना के बीच रिश्ते और कैसे मजबूत हो सके इसे लेकर के भी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है और अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि जिस तरह से भव्य स्वागत गयाना की ओर से की गई है वो हमारे रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा। All right, Manohar, I'll request you to kindly stay on with me and continue to be with me on the broadcast while we also get more updates here. Prime Minister Narendra Modi has met with the top leaders of Caribbean nations on the margins of India CARICOM summit and discussed strengthening bilateral ties and enhancing the cooperation across several key areas. He also met Barbados Prime Minister Mia Mottley. Prime Minister also met with Bahamas counterpart Philip Davies and had a fruitful discussion focused on strengthening the economic ties between the two nations, while climate change also was one of the top subjects. Climate change action and green partnerships were discussed in detail on the sidelines of India CARICOM summit. Prime Minister Narendra Modi also met Prime Minister Keith Rowley of Trinidad and Tobago. He congratulated Dr. Rowley for adopting India's flagship UPI platform. All right, now joining me back on the broadcast is my colleague Manohar Kesri. Manohar, in fact, when we talk about the meetings that have taken place, this is a host of meetings where series of discussions have taken place. When we talk about, in fact, the meetings with Barbados Prime Minister or the Prime Minister of Trinidad and Tobago, there are many names. But what is the key highlight that we can talk about also playing enough relevance for also the people of these nations who have recognized India with the prowess of development and with the idea of empowering the nation by its own merit? बिल्कुल जिस तरह से भारत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है और भारत को पूरी दुनिया एक मदद की निगाह से देख रहा है। तो भारत में अपना व्यापार ढूंढ रहा है, बाजार ढूंढ रहा है और इसी भारत के जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में, चाहे करेगाई देश की बात करें या करेगाई की मदद की बात हो या आर्थिक तरीके से किस तरह से वृद्धि हो सके। अगर हमारा प्रोडक्ट वहां पर जाता है, वहां की मार्केट में वो बिकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक जो ग्राफ है वो ग्राफ ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इस मद्देनजर जो है तो तमाम करेगाई देशों के साथ बातचीत है, करेगाई देश बारबाडोस की बात करें, सुरिनाम की बात करें या हम अदर कंट्रीज की बात करें, सभी लोगों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। बारबाडोस ने तो ऑनरी सम्मान भी दिया है, ऑर्डर ऑफ द बारबाडोस। तो आप समझ सकते हैं कि इससे लेकर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस रहा है। 56 साल के बाद कोई
प्रधानमंत्री गयाना पहुंचता है, उन कार्यवाही देशों में पहुंचता है और इस तरह के संदेश को हम रीड भी करते हैं। तो मेन फोकस यही है कि किस तरह से उनके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जाए, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाना है तो हमारा जो लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम। लास्ट ईयर G20 भारत में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ था, तो इसकी एक लाइन थी, वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर। तो इसी लक्ष्य कदम पर, इसी लाइन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और कई देशों पे जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट एक्सप्लोर हो सकता है, हम अपनी योजनाओं को या अपनी मैन पावर को वहां पर हम सप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के उनके रिजाई देशों में भारत का जो संदेश है वो उन्होंने बताया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.